Once again, very good morning, all the students of class 12th. My dear student, today we are here to start the third poem of your book Flamingo, and the name of the poem is Keeping Quiet. That is composed by a very famous writer, Pablo Neruda. Pablo Neruda, who was born on 1904, is the pen name of Naphtali Ricardo Reis Bosalto, who was born in the town of Parul in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. He wrote in green ink, which was his personal symbol for desire and hope. His writings are simple, wherein lies their beauty. This present poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. So, my dear student, today we are going to start the third chapter, Keeping Quiet. So, this one, all whatever we have read about the poet Pablo Neruda. Pablo Neruda पोएट के बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा ही है, उनके बारे में बायोग्राफी उनका देखा. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. This poem actually poet talks about the introspection. Actually, poet Pablo Neruda discusses the need of maintaining peace and silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human being, animals and environments. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. First of all, let us come to know what is introspect. Introspect means to assess ourselves, to examine ourselves, to investigate ourselves, what we are thinking, what we are doing, what the aim we have in our mind, in our life. We should introspect, we should think over that, we should consider over that. तो पोएट पैब्लो नेरूडा के कहने का मतलब बस यही है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें. कीपिंग क्वाइट, जो सिंपल सा मीनिंग है कि शांत रहना. शांत रहना मीन नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर सम टाइम. पोएट Pablo Neruda mean to say keeping quiet mean not to do anything for some moment, for some time, and introspect ourselves means कुछ समय तक हम लोग कुछ ना करें, कोई काम ना करें, because in our today's life we are very busy to make money. In our daily life, in our daily routine, everyone is so busy that he or she does not have time for himself or herself. हर वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जो शॉपकीपर हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त है, पैसे कमाने में अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, दूसरों के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए टाइम नहीं उसके पास. सो पैब्लो नेरुडा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वी शुड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ. हम अपने बारे में सोचें, हमें थोड़ा टाइम निकालें, कुछ समय के लिए कुछ ना करें. एंड फॉर डूइंग सम टाइम नथिंग विल बी रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस, अ वेल विशिंग फॉर अस. So let's start the poem. Because keeping quiet, the poet asks humanity to count numbers from 1 to 12 being the number of hours shown in a clock or the number of zodiac sign. First of all, let's start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. Now poet from the very first line, poet यहाँ पर first line से बोल रहे हैं कि now we will count to 12. Now I will count up to 12 and we will all keep still. पोएट यहाँ पर कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और हम सब लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे. 12 इट इज़ द सिंबल ऑफ हियर. 12 नंबर इन द क्लॉक, वट एवर इज बीइंग शोन इन द क्लॉक. 12 नंबर क्लॉक में शो होते हैं, दैट इज द सेम थिंग. एंड ही रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स बिटवीन पीपल. पोएट 12 तक काउंट करने को बोलते हैं. क्या कहते हैं? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. पोएट कहते हैं कि कुछ मोमेंट के लिए मैं 12 तक काउंट करूंगा और कुछ मोमेंट के लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसमें हम लोग बिल्कुल क्वाइट रहेंगे. बिकॉज लैंग्वेज वी नो वेरी वेल दैट लैंग्वेज क्रिएट्स ऑलवेज बैरियर्स बिटवीन पीपल. लैंग्वेज जब हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोलेंगे
तो हम लोगों के बीच एक बैरियर होगा। दैट्स वाई पोएट इज टॉकिंग कि हम लोग कुछ समय के लिए बिल्कुल कुछ ना बोलें, कोई काम न करें, बिल्कुल अपने हाथों को रोक दें। ये न केवल हमारे ह्यूमैनिटी के लिए बल्कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए ही बहुत ही सही होगा। माय डियर स्टूडेंट, सबसे अच्छा इस चैप्टर को समझने का एग्जाम्पल इस समय हम इस कोरोना के पैंडेमिक कोरोना में हम लोग कोविड-19 में देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था सो हमारी एनवायरनमेंट कितना ही बेटर हो गए थे, पहले से बहुत बेटर हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था एनवायरनमेंट हमारा जो था। सो यू कैन सी दैट कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बट स्टिल इट वाज वेरी गुड फॉर अस, फॉर वेरी गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो द सेम थिंग पोएट Pablo Neruda is appealing in the poem. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. बिल्कुल हम लोग कोई काम ना करें, बिल्कुल अपने हाथों को रोक दें, बिल्कुल शांत रहें, किसी लैंग्वेज में ना बोलें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मीन वेरी स्ट्रेंज, यूनिक। और ये बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा कि विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। पोएट कहते हैं रियली इट वुड बी वेरी स्ट्रेंज मोमेंट, यूनिक मोमेंट कि हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, कोई काम नहीं करेंगे और सड़कों पर कोई शोर नहीं होगा, विदाउट रश, कहीं भीड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, कोई इंजन नहीं चलेगा। मतलब हर जगह पूरी दुनिया में सब लोग बिल्कुल कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, अपने काम करने वाले हाथों को रोक देंगे। पूरी दुनिया में कहीं कोई कुछ भी नहीं काम करेगा कुछ देर के लिए, कहीं कोई रश नहीं होगा, कहीं कोई इंजन की साउंड नहीं होगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड फिशरमैन हु ऑलवेज यूज्ड टू बिजी to catch whales and fishes in the sea, they will not harm whales during that time. और उस ड्यूरेशन में फिशरमैन वेल्स को, वेल मछली को जा करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो लोग समुद्र में नमक के लिए जाते हैं वे उनके हाथ जो बिल्कुल इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बिजी होते हैं, ऑल बिजी टू डू सो। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम आप कीपिंग क्वाइट, दे विल सी देयर हर्ट हैंड्स, उनके हाथ जो इंजर्ड हो चुके हैं उसको देखेंगे। एंड दे विल इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। एंड पोएट इज सेइंग हियर कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और ग्रीन वार के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो बड़े बड़े वेपन्स बनाए जाते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, दे विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट, दे विल नॉट construct any weapon, any bomb, any gun like that. It will not be made, and would put on clean clothes and walk about with their brothers. और वे भी वो बिल्कुल क्लीन क्लॉथ पहन करके वो क्या करेंगे, बिल्कुल सब लोग साथ में टुगेदरनेस के लिए, ब्रदरहुड के लिए वो एक साथ रहेंगे। द मेन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स एंड विक्ट्री based on death of innocent people will join their enemy and stand in unity with them. और वो लोग जो प्रिपेयर, जो वॉर्स के लिए बड़े बड़े हथियार वेपन तैयार करते हैं, दे विल नॉट डू एनीथिंग, दे विल नॉट प्रिपेयर दोज थिंग, एंड दे विल स्टैंड विद देयर एनिमी एंड विल शो द साइन ऑफ ब्रदरहुड. No one will harm himself or any other person, and during that period nobody will harm no one. किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. And everyone will unite and ponder upon his act and realize the result of his deed. And really it will be very good for us, because during that point nobody will do anything. Nobody will do anything. And during that period we will be united. The poet says that, let's see further. In the said doing nothing, what I want should not be confused with total inactivity. Poet once again here mentioning, what I am saying that does not mean total inactivity. Poet का कहने का मतलब है कि don't be confused कि मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो, it does not mean it is total inactivity. Poet के यहाँ कहने का मतलब है कि keeping quiet, it does not mean total inactivity. But life what is what it is about. I want no truck with that, no truck with no compromise. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई काम ही ना करे, कोई कुछ ना करे, बिल्कुल सब लोग छोड़ कर बैठ जाए. The poet says that everyone is working continuously to achieve one's goal. People are threatened by death and the fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly. Poet कहने का मतलब ये नहीं कि कुछ देर के लिए शांत हो जाइए या रुक जाइए, कोई काम न करिए. इसका मतलब ये नहीं कि टोटल इनएक्टिव हो जाइए.
Poet mean to say that during that period when everybody is standing together, they should introspect themselves, they should think about our own life, because we all are busy in making money, we all are busy to achieve our goals. सब हर इंसान के पास अपना एक गोल है, एक लक्ष्य है, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ टारगेट पूरा करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है. They all are busy in that, they are not introspecting themselves. So poet mean to say during that keeping quiet period we should consider our own self, we should think ourselves. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could be nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So overall people mean to say that people are threatened by their death से डरे हुए हैं, and fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly. लोग डरे हुए हैं, लेकिन हमें डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है. In this mad rush, they do not realize the repercussion of their acts. He wants us to pause and come out of the mad rush. पोएट हमसे यही कहना चाह रहा है कि हमें इस तरह की चीज़ों से बाहर आना चाहिए, और निश्चित रूप से जब हम लोग कुछ देर शांत रहेंगे, कीपिंग क्वाइट रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, पॉन्डर करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सारी सैडनेस हमारी दूर हो जाएगी. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. And poet here says that कि शायद earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Here poet is giving one symbolical line. Perhaps the earth हमें टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है, सिखा सकता है कि when everything seems dead, जब बहुत सारी चीज़ें डेड फील होती हैं, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि वो डेड हैं. तो पोएट कह रहा है कि कुछ देर अगर हम लोग शांत हैं, कुछ देर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डेड हो गए, इनएक्टिव हो गए. नहीं, वो इनएक्टिव नहीं है. उसका एग्जाम्पल एक पोएट दे रहा है सिम्बोलिकल मीनिंग के साथ कि जब हम किसी सीड को, जब हम लोग किसी छोटे पौधे को, प्लांट को, बीज को बोते हैं तो वो डेड दिखाई देता है, ना उसमें लीव्स होते हैं, ना कोई फ्रूट्स होते हैं, वो बिल्कुल डेड दिखाई देता है. बट लैटर प्रूव्स टू बी अलाइव. लेकिन कुछ समय बाद जो पौधा, जो प्लांट बड़ा होता है, उसमें से हमें फ्लावर दिखते हैं, लीव्स दिखाई देती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, तो वो लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. द सेम थिंग पोएट इज मेंशनिंग हियर. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. तो कुछ समय के लिए डेड होने का मतलब, कुछ समय के लिए इनएक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि हम लोग डेड हो गए, बल्कि लेटर प्रूव्स टू बी, बल्कि हम एक नई एक्साइटमेंट, नई एनर्जी के साथ फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं. बट वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ. एंड इन द लास्ट अगेन पोएट इज टेलिंग द सेम लाइन, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. और पोएट फिर से एक बार वही चीज मेंशन करता है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप लोग अपने चले जाओगे, आप लोग कीप क्वाइट रहोगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा. When the people will remain quiet for a while, they will realize the purposes of their lives. Just like all the creations of nature undergo a rebirth with the change of seasons, similarly keeping quiet will be rebirth for the human soul. जब हम लोग कीप क्वाइट रहेंगे तो हमें, हमारे लिए वो एक रीबर्थ होगा, हमारे लिए एक नई क्रिएशन, नई एनर्जी के साथ फिर से हम स्टार्ट कर पाएंगे. इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ. अगेन द पोएट सेज दैट ही विल काउंट टिल 12 एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट. और पोएट फिर से सबसे अपील करता है कि बी क्वाइट फॉर सम टाइम, डोंट डू एनीथिंग फॉर सम टाइम, एंड इंट्रोस्पेक्ट एवरीवन. सबसे इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को सोचने के, अपने लिए सोचने के लिए समय निकालने के लिए कहता है कि हम लोग बिल्कुल केवल अपने मनी मेकिंग में, अपने गोल्स में बिजी न रहे, बल्कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें. सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव गॉट द चैप्टर वेल. सो next video again we will meet. Thank you.